very good morning, class ninth. So, I'm here with our lecture number 2, right? That is on now again another type of tissues, that is the permanent tissue. Yesterday, we talked about meristematic tissues in complete detail. We talked about their types, we talked about their location as well as function. If you recall your flow chart, we said plant tissues, they are of two types. One is the meristematic one एंड अनदर्स दे आर द परमानेंट वन. मतलब एक डिवाइड करते हैं और दूसरे जो परमानेंट होते हैं वो मेच्योर होते हैं एंड दे डू नॉट डिवाइड. सो टुडे आवर टॉपिक इज अबाउट द परमानेंट टिश्यू. परमानेंट भी टू टाइप्स के होते हैं एज यू नो. परमानेंट इज ऑल्सो simple and complex. So from here today I am taking simple permanent tissues. So let's see that what is simple permanent tissue. But before that, there is one activity or homework for you, because in our NCRT after every topic there is one activity mentioned and you have to perform this activity because it is easy one, so you can perform it at your home. What you have to do, you this activity is for 10 days. 10 days में complete होगी. So you have to click the photographs of your results and you have to send it to me. Otherwise, I will not put your internal assessment. So here the thing is, what is this activity is about? I will explain each and every point to you. Yesterday we talked about meristematic tissue. So aim of this activity is to make you understand the location of meristematic tissues in plants, to tell you the role of meristematic in tissue in plant growth. ये तो आपको I think अब तक clear हो गया होगा, क्योंकि meristematic tissues जो हैं they are dividing tissues, so they help in plant growth. As well as this activity help us to differentiate between meristematic and permanent tissue. आज हमारा टॉपिक ही परमानेंट है, सो दिस पॉइंट विल बी ऑल्सो क्लियर्ड. सो इसको ऐसे ही लिखना है जैसे मैंने लिखा है एक्टिविटी 1. First you will write objectives. Now what is the time required for this activity? A week, but हम week नहीं लेंगे, you can take 10 days. Materials क्या लगेगा हमें? Okay, at your home you can take any steel glass or you can take any glass jar. Then a very बहुत ज़्यादा जिसका माउथ बहुत ज़्यादा चौड़ा हो वो नहीं चाहिए. It should be according to the size of your onion. Then you have to take water. We need 2 onions, scissors and measuring scale. So करना क्या है आपको? You have to take 2 सिमिलर ग्लास जार्स. ऐसा नहीं है कि एक ग्लास छोटा ले लो एक ग्लास बड़ा ले लो. नो, यू हैव टू टेक सिमिलर साइज ऑफ ग्लास जार्स एंड यू हैव टू फिल देम विद वाटर. एज यू कैन सी हेयर दैट दीज ग्लास जार्स, दीज शुड बी फिल्ड विद वाटर, राइट. और इनका माउथ ऐसा होना चाहिए कि आपका जो अनियन है, प्याज है, दे शुड बी फिक्स्ड एट द mouth. So what you have to do, you have to place 1 onion in each jar, जैसे कि शो किया हुआ है मैंने फिगर में. बट what you have to do before putting them on the jar, अगर आपके अनियन के बेस पे छोटी छोटी रूट्स हैं, then just cut them. थोड़ा सा हो सकता है, it's fine, but it should not be long. Cut them and only then keep them in the water. Water should be filled at the till the top and then keep your onion bulbs in that particular water. For how much long time? अब ये आपको एक कॉर्नर में रख देना है till the 10th days. आज 9th है, so you have to place it for the 10 days, and after 10 days you have to noted down your observation. So you have to keep observing the growth of the roots in both the bulbs and measure the length. After a certain length of root growth, after the 4th day of root growth in one of the jars,
ऑब्जर्व द ग्रोथ ऑफ रूट्स इन द फॉलोइंग डे। आपको ऑब्जर्व कैसे करनी है? फर्स्ट डे में ऑब्वियसली रूट नहीं ऑब्जर्व होगी, सो वी विल टेक थर्ड डे। बोथ जार्स में आपको थर्ड डे से शुरू करना है, और रूट की लेंथ यहाँ पे लिखना क्या है आपको? लेंथ ऑफ रूट, और वो भी किस में? सेंटीमीटर्स में। आप स्केल से आराम से मेजर कर सकते हो। देन डे 4 पे 5, 6, 7, 8, 9, 10। सो 3 डेज अगर आप 9th को रख रहे हो, 9th, 10th, 11th, देन आपका थर्ड डे कौन सा हुआ? 11th। तो आपको 11th डे मीन्स डेट 11th जुलाई से अपना डे 3 लेके उसका लेंथ मेजर करके आपको लिखना है, राइट? डे 3 दैट विल बी डे 1, डे 2, this will be day 3. So from day 3 you have to write down your these table. You have to complete this table and you have to send me your results. Now let's talk about permanent tissues. Tissue that comes from meristematic tissues. ऑब्वियसली पहले सारे सेल्स ग्रुप में क्या करते हैं? डिवाइड करने के बाद वो इतना नंबर बढ़ जाता है कि नाउ दे आर मैच्योर इनफ टू परफॉर्म स्पेसिफिक function, and once they start performing specific function they will not divide, and these kind of tissues are known as permanent मतलब अब हम mature हो गए, अब हम divide नहीं करेंगे. So these kind of tissues which come from meristematic and they get matured, they are mature, and most of these cells they have lost the power to divide. I already told you that most of them they do not divide further, but what is their characteristics? कैसे होते हैं ये? they are have a particular shape. definite का मतलब होता है fixed shape, size भी fix होगा and function भी fix होंगे इनके. they have specific function. they can be dead, they can be living. हम दोनों लिखेंगे क्योंकि दोनों केसेस होते हैं. they can be dead और they can be living. कुछ बुक्स में आपको सिर्फ लिविंग मिलेगा, कुछ बुक्स में मोस्ट ऑफ डेड मिलेगा, बट वी विल राइट बोथ डेड और लिविंग जब तक हम स्पेसिफाई नहीं कर रहे. सो परमानेंट टिश्यू के 3 पॉइंट्स. दे कम फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक, दे लॉस द पावर टू डिवाइड, नहीं डिवाइड करते, पर्टिकुलर शेप होता है, साइज होता है, पर्टिकुलर ही फंक्शन होता है. देयर इज अ वन term which is important for you to know: the process by which cells arise from meristematic tissue and take up a permanent shape, size and function. That process is called differentiation. मैंने आपको कल भी बताया था. पहले एक बेबी जब मदर के इनसाइड द वॉर्म ग्रो करता है. आई एम टेकिंग द human being example. We are doing plants but I am giving you one example from the human. baby mother के अंदर जब grow करता है तो it start from a cell, right? cell divide करते हैं. divide करने के बाद these cells have now grouped into tissues, and tissues के permanent functions हो जाते हैं, जैसे कि lungs. ये कल वाली example मैं फिर से दे रही हूँ. heart, liver, then then you can take your stomach cells, right? so every place has their particular function. so but आते कहाँ से हैं ये? meristematic से. so the process by which cells arise from meristematic tissue and they take up a permanent shape, size and function. ये एग्जाम्पल मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए दी है, बट ये प्लांट्स में नहीं लिखनी है बिकॉज वी आर डिस्कसिंग हियर plants. so the process is called differentiation. मतलब कि जो cells अभी कुछ भी थे, randomly we are calling them just the cells or group of cells is known as tissues, but now they are differentiated. मीन्स या तो वो जाइलम बन जाएगा या फिर फ्लोएम जाइलम बन जाएंगे. तो जाइलम पानी ही लेके जाएगा, वो फूड तो नहीं लेके जाएगा. फ्लोएम बन जाएंगे तो फ्लोएम फूड लेके जाएगा. सो दे हैव स्पेसिफिक फंक्शंस नाउ. सो परमानेंट इज ऑफ 2 टाइप्स. कल भी हमने डिस्कस किया था, सिंपल एंड
कॉम्प्लेक्स। आज जो हम डिस्कस करेंगे सिर्फ और सिर्फ पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा and sclerenchyma. Next lecture we will talk about complex. So today only our focus is on simple permanent tissue, that is parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. वन बाय वन मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ. दैट इज़ द टाइप्स ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू: पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा. सबसे पहली चीज़ जो आपको क्लियर होनी चाहिए, पेरेन्काइमा किस तरह के सेल्स होते हैं. दे आर लिविंग सेल्स. कोलेन्काइमा भी लिविंग सेल्स होते हैं. स्क्लेरेन्काइमा डेड सेल्स होते हैं. आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन द बिगनिंग दैट परमानेंट टिश्यू, जो परमानेंट टिश्यू, इट कैन बी लिविंग as well as it can be dead. So we are discussing now, we are doing three types of cells, that is parenchyma, collenchyma, sclerenchyma. Parenchyma and collenchyma both are having living cells and sclerenchyma is having dead cells. Now we will see their characteristics. Characteristics क्या होती हैं? किसी के special features. अब मैं बोलूँ कि दिस पर्सन हैज़ सम स्पेसिफिक फीचर्स, स्पेशल फीचर्स. सेम दीज tissues also have specific features. First, parenchyma. Parenchyma is the first tissue, first permanent, simple permanent tissue, very basic, very simple, and it is a packaging tissue. Packaging tissue means it basically, if these are two cells joined together, so what parenchyma does, it fills the spaces between other tissues, right? So it is a very simple packaging tissue, as well as it fills the space between other tissue. It is the most abundant, if I ask you, most abundant tissue, simple permanent tissue found in plant, then it is parenchyma. It has unspecialized, undifferentiated cells with thin cell walls made up of cellulose. Two things यहाँ पे याद रखनी है. पेरेन्काइमा की सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेलुलोज की. यूजुअली प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज. पेरेन्काइमा सेल वॉल इज ऑल्सो मेड अप ऑफ सेलुलोज. इसके पास जो सेल्स होते हैं, दे आर नॉट स्पेशलाइज्ड, दे आर अनस्पेशलाइज्ड एंड अनडिफरेंशिएटेड. Second, another thing is it has large intercellular spaces. जो दो सेल्स कंबाइन होते हैं उनके बीच में गैप ज़्यादा है. दैट इज़ मतलब सेलुलर, दो सेल्स के बीच में गैप, और इसको टर्म को हम बोलते हैं इंटर सेलुलर. सो जब बहुत ज़्यादा गैप होता है, मीन्स मोर स्पेसेस, मोर गैप बिटवीन टू सेल्स, सो मोर और लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस. सो स्पेस ज़्यादा होगी तो सेल टाइटली अटैच होंगे कि लूजली. अब सपोज एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, सो दे हैव स्पेस, सो दिट मीन्स सेल्स आर लूजली अटैच्ड. क्लियर? नेक्स्ट, सेल्स हैव न्यूक्लियस. न्यूक्लियस होता है इनके पास, डेंस साइटोप्लाज्म भी होती है और लार्ज वैक्यूल भी होती है. कल एक क्वेश्चन मैंने पूछा था कि वाई मेरिस्टेमेटिक सेल्स दे डू नॉट हैव वैक्यूल, बिकॉज दे आर डिवाइडिंग सेल्स. बट नाउ यू कैन सी दीज सेल्स, दे हैव न्यूक्लियस ऑल्सो, दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म, बहुत ज़्यादा साइटोप्लाज्म भी है, और वैक्यूल भी है इनके पास. दीज आर द फीचर्स ऑफ पेरेन्काइमा. कोलेन्काइमा सेल्स, दे आर लिविंग सेल्स, इलोंगेटेड होते हैं. इलोंगेटेड होना मतलब ऐसे लॉन्ग, लंबा होना, राइट? दे आर ऐसे लाइक दीज टाइप ऑफ सेल्स, इलोंगेटेड. इसको, इस शेप को हम इलोंगेटेड बोलते हैं. दे डो नॉट हैव एनी फिक्स शेप. फिक्स, दे आर बेसिकली इरेगुलर काइंड ऑफ दिस एंड वेरी थिक एट द कॉर्नर्स. जब को भी फिक्स शेप नहीं होती तो उसको हम बोलेंगे इरेगुलर, एंड थिक एट द corner. They have made up of cellulose and
पैक्टिन। यहाँ पे मैंने एक और मटेरियल ऐड कर दिया जो इसकी सेल वॉल जिससे बनी होती है, दैट इज़ पैक्टिन। पेरेन्काइमा में सिर्फ एक ही वर्ड हमने यूज़ किया है, सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेलुलोज की, बट यहाँ पे सेलुलोज प्लस पैक्टिन। प्लीज़ यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट रीडिंग व्हेन यू रीडिंग दिस, बिकॉज फ्रॉम दीज type of lines and any MCQ can come in your exam. Now they have very less or no intercellular spaces. ये थे हमारे पेरेन्काइमा। अब ये कॉलेनकाइमा के बीच में स्पेसेस बहुत कम है। इट मीन्स दे आर लिटल टाइटली अटैच्ड, दे हैव लेस और नो इंटरसेलुलर स्पेसेस। दे ऑल्सो हैव न्यूक्लियस, dense cytoplasm and large vacuole. Now last one is our sclerenchyma. Sclerenchyma, they are dead cells. They are long, they are narrow मतलब जिनके बीच में जो बेसिकली कम वाइड होते हैं। वाइड का मतलब समझते हो, चौड़ा। तो नैरो उसका ऑपोजिट है। वाइड होता है अगर चौड़ा, तो नैरो का मतलब कम चौड़ाई, राइट। सो दे आर लॉन्ग, दे आर नैरो, दे आर थिक वॉल्ड सेल्स। अब यहाँ पे एक और मटेरियल आ गया है, यहाँ पे सेलुलोज नहीं है, यहाँ पे है लिग्निन। लिग्निन, LIGNIN, स्पेलिंग ठीक कर लीजिएगा, LIGNIN। व्हाट इज लिग्निन, ये क्वेश्चन आता है पेपर में। लिग्निन इज अ केमिकल सब्सटेंस विच एक्ट एज अ सीमेंट। सबने सीमेंट देखा है। सीमेंट, इफ़ दीज आर टू ब्रिक्स, उसके बीच में सीमेंट जोड़ दो तो ये आपस में एकदम पैक्ड हो जाएंगी। दे विल बी ग्लू की तरह काम करता है। सो सेम लिग्निन काम करता है स्क्लेरेन्काइमा में। सो इट एक्ट एज अ सीमेंट एंड मेक्स द वॉल ऑफ द सेल सो हार्ड। सो सच सेल वॉल्स दे आर कॉल्ड लिग्निफाइड वॉल। तो डरना नहीं है। लिग्निफाइड वॉल्स क्या हो गई, lignified walls. Lignified walls are those which are made up of substance lignin and they have pits. पिट्स का मतलब जगह ख़त्म हो गई मेरी, यहाँ पे समझाती हूँ। पिट्स का मतलब है, यहाँ पे देखो, दिस इज़ अ गैप, जो गैप लाइक स्ट्रक्चर है, ओ दीज स्पेसेस, दीज आर कॉल्ड पिट्स। पिट्स, दे आर द गैप बिटवीन टू वॉल्स, दैट इज़ कॉल्ड पिट्स। मतलब ये जो वॉल्स हैं ये ऐसे बिल्कुल जुड़ी नहीं हुई हैं, देयर आर स्मॉल पोर्स, गैप्स, दैट आर कॉल्ड पिट्स. So these pits are present in our sclerenchyma. Cells, they अब now how it is different from parenchyma and collenchyma, ये question 5 marks में आता है. Cells do not have nucleus, इसके पास ना तो न्यूक्लियस है ना ही साइटोप्लाज्म है, प्लस इट इज़ अ डेड सेल. दैट इज़ हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम पेरेन्काइमा एंड collenchyma. This was about the features. Now let's talk about the function. Parenchyma is the basic permanent tissue. So basically it provides support. ये प्लांट्स को बहुत हेल्प करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है. एक लाइन मैंने आपको पहले बता दिया, इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट टिश्यू इन द प्लांट. पेरेन्काइमा ऑफ स्टेम एंड रूट्स. पेरेन्काइमा जो स्टेम और रूट्स के होते हैं, दे स्टोर न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर. That type of parenchyma is known as storage parenchyma. So अगर पेपर में पूछे आपसे what is storage parenchyma? Parenchyma of stem and root which helps in storage of nutrients and water. Now when parenchyma store or contains chloroplast. chloroplast में क्या होता है, क्लोरोफिल. एंड क्लोरोफिल होगा तो कौन सी प्रोसेस होगी, फोटोसिंथेसिस. उस टाइम पे इसको पेरेन्काइमा नहीं बोलेंगे, उस टाइम पे इसको बोलेंगे क्लोरेन्काइमा. सो मैंने आपको क्या क्या बताया है, स्टोरेज पेरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा. एक और बता रही हूँ अभी, द थर्ड वन इज एरेन्काइमा. एरेन्काइमा एक्वेटिक प्लांट्स में मिलता है. दैट पेरेन्काइमा which has large air spaces to provide buoyancy. New word for you, buoyancy. BUOYANCI. buoyancy क्या होता है, it is basically tendency
tendency, capacity of plant to float on water. और buoyancy किसकी वजह से आती है? That is due to parenchyma. बट पेपर में अगर लिखना हो, for 1 mark का क्वेश्चन हो, then you will write parenchyma. So in aquatic plants, parenchyma, that parenchyma which has large air spaces, it provide or help the plants to float and exchange of gases, and that time it is called parenchyma. So 3 types of parenchyma we discussed with their function: storage, क्लोरेनकाइमा जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा क्योंकि इसके पास क्लोरोप्लास्ट एंड क्लोरोफिल है, एंड थर्ड वन इज द एरेनकाइमा. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉलेनकाइमा? इट इज़ प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी. आप स्टेम को कई बार बहुत ईजिली पकड़ के तोड़ देते हो. इट प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी एंड मैकेनिकल सपोर्ट टू एरियल पार्ट्स. एरियल मतलब जो हवा में प्रेजेंट है, बेसिकली जो ग्राउंड के अंदर नहीं है. लीव्स हो गए, स्टेम्स हो गए, दे आर द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स. दे अलाउ देम टू बेंड. कौन अलाउ करता है उनको बेंड करने में? आपने देखा होगा जब बहुत तेज हवा चलती है, स्टेम, लीव्स, दे कैन बेंड. That bending is helped by tissue, that is collenchyma. Next is the sclerenchyma. It makes, because it is made up, it has lignin. So ये बहुत रिजिड बना देता है चीज़ों को. रिजिड का मतलब होता है हार्ड. कोई चीज़ हार्ड होगी तो उतनी ही स्ट्रॉन्ग भी होती है. सॉरी. So it gives rigidity and strength to plant and makes it hard. कोई चीज़ जितनी हार्ड एंड टफ होगी उतना easily it can bear stress. कोई भी अगर प्लांट को कोई there is some outside, say some bacterias or other protection चाहिए basically from the stress kind of like or strains, कुछ ज़्यादा जिससे plants they are getting disturbed, that is protected by sclerenchyma tissue. So it gives rigidity to the plant, it makes it very hard and tough to bear the stress. The last one is where they are present. Parenchyma is usually in the non-woody, soft parts of the roots, stem, leaves, flower and fruits. As you can see, these all are usually soft portion of the plant. Collenchyma it is found in leaf stalks. Leaf stalks क्या होती है? If this is a leaf, जिससे आप leaf को पकड़ते हो, that is called stalk. राइट. सो वहाँ पे अगर मैं बोलूँ यहाँ पे कौन सा टिश्यू है, दैट इज कॉलेनकाइमा. दिस कम्स इन द लीफ स्टॉक एज वेल एज बिलो द एपिडर्मिस ऑफ लीव्स. एपिडर्मिस क्या होती है? एपिडर्मिस इज अ लेयर. जब लीफ को अगर कभी हम लैब में कट करें तो जो फर्स्ट लेयर विच इज़ विजिबल दैट इज एपिडर्मिस. एक्चुअली फर्स्ट लेयर होती है क्यूटिकल. क्यूटिकल सबसे पहले दिखाई देती है. देन दे हैव दिस काइंड ऑफ लेयर विच इज़ नोन एज एपिडर्मिस. एपिडर्मिस इज द प्रोटेक्टिव लेयर इन द लीव्स एंड स्टेम. सो वहाँ पे कौन सा टिश्यू मिलेगा हमें? कॉलेनकाइमा. स्क्लेरेनकाइमा फाउंड इन स्टेम अराउंड वेस्कुलर बंडल्स. वेस्कुलर बंडल कल भी मैंने आपको बताए थे, जाइलम एंड फ्लोएम, एज वेल एज इन द वेन्स ऑफ लीव. दिस इज अ लीफ. लीफ को ध्यान से अगर कभी आपके घर में अगर प्लांट है तो ये देखिएगा, ऐसी उसमें मार्किंग होती हैं. दीज आर कॉल्ड वेन्स ऑफ द लीव्स. सो इस वेन्स ऑफ द लीव्स में कौन सा टिश्यू आपको मिलेगा? दैट इज स्क्लेरेनकाइमा. यू कैन रिलेट इट विद योर प्लांट्स विच आर एट योर होम. स्टॉक आपको पता है, स्टॉक पे कॉलेनकाइमा मिलेगा. वेन्स ऑफ द लीव्स में आपको स्क्लेरेनकाइमा मिलेगा. राइट. सॉफ्ट पार्ट्स में पेरेनकाइमा मिलेगा. वन की पॉइंट फॉर यू दैट रोप्स, मैट्स, दे विच आर मेड अप ऑफ जूट, लिनन. कई बार हम बोलते हैं दिस बेडशीट इज मेड अप ऑफ लिनन और दिस क्लॉथ इज लिनन, नॉट कॉटन. दे आर यूजली यूज्ड इन क्लॉथ मार्केट, दैट इज टेक्सटाइल्स. हार्ड शेल लाइक आपका वॉलनट जिसको आप अखरोट भी बोलते हो. हस्क ऑफ कोकोनट. हस्क क्या होता है? वो जो ब्राउन बाहर वाला पोर्शन होता है कोकोनट का. एंड सीड कोट. ये सारे के सारे हार्ड पार्ट हैं. दे आर मेड अप ऑफ स्क्लेरेनकाइमा.
ये सारी हार्ड जितनी भी पोर्शन है, दीज ऑल आर मेड अप ऑफ स्क्लेरेनकाइमा. इसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं, राइट. सो दिस इज लास्ट द डायग्राम्स ऑफ ईच एंड एवरी टिश्यू. एज यू कैन सी दैट पेरेन्काइमा, इट हैज़ मैनी इंटरसेलुलर स्पेसेस. जब ये दो सेल्स आपस में ज्वाइन कर रहे हैं, देयर आर मैनी इंटरसेलुलर spaces. So this is our transverse section. So transverse section क्या होता है? जब भी किसी चीज़ को आप ऐसे कट करते हो. longitudinal जब उसको ऐसे इस डायरेक्शन में कट किया जाता है, right? So here is the transverse section and this one is the longitudinal section. That is like, as you can see here, I will show you that first you have to make these walls. This is one cell, right? This is one cell, then it is interacting with the other. These are the other, because these are group of cells. So in between there is a yellow marking. You can see yellow filled material. It is connecting these two cells with each other, and this is called middle lamella. Middle lamella is a material through which two neighboring cells are connected. Two neighboring cells connected with each other, right? Then this is filled with the jelly like material, this blue material. This is your cytoplasm, and then inside there is a space which is vacuole. Okay, there is a wall. एक मैंने दो वॉल्स बनाई हैं, एक आउटर साइड पे वॉल बनाई है एंड इनर साइड देयर इज़ अ वॉल. सो जो सबसे पहले वॉल बनती है दैट इज़ प्राइमरी सेल वॉल एंड आउटर वॉल इज़ द सेकेंडरी सेल वॉल. बट हियर दिस मच इज़ सफिशिएंट फॉर यू टू मार्क इन योर डायग्राम दैट दिस इज साइटोप्लाज्म. जब भी आप टू सेल्स को कनेक्ट कर रहे हो देन मार्क मिडल लैमेला लाइक दिस. स्पेसिफिकली दिस ये जो येलो पोर्शन है, दिस इज मिडल लैमेला. Space is known as your vacuole, and the first layer, that first wall, that is the primary cell wall. This one is primary cell wall. Next is the collenchyma. Collenchyma is thick. इसका हमने इस फीचर में लिखा भी हुआ है. It is thick at कॉर्नर्स. सो आपको इसको बहुत थिक बनाना है. इसका स्पेसिफिक फीचर ही यही है कि इसको हमेशा हम थिक बनाएंगे एट द कॉर्नर्स. सारी वॉल्स देखो बहुत ज़्यादा थिक बनाई है मैंने पर्पल से. सो दीज आर वॉल थिकनिंग्स. इनर साइड पे देयर इज़ अ न्यूक्लियस एंड देन दिस इज़ अ सेल वॉल एंड वैक्यूल. यहाँ पे भी देखो एंड वॉल इज़ वेरी थिक, राइट? एंड वॉल इज़ वेरी वेरी थिक. एंड दिस वन हेयर इज़ इनर साइड पे जो वॉल है जो मैं अभी बना रही हूँ दैट इज़ अ प्राइमरी सेल वॉल. एंड दिस ग्रीन वन इज़ न्यूक्लियस. दिस ग्रीन पोर्शन इज़ न्यूक्लियस. दिस वन इज़ न्यूक्लियस एंड इनर जो स्पेस खाली है दैट इज़ वैक्यूल एंड दिस पोर्शन इज़ अवर साइटोप्लाज्म. दो सेल्स के बीच में जो गैप है ये वाला, that is called intercellular space. Intercellular space is gap between two cells. The last one is sclerenchyma. This is transverse section. Transverse section हमेशा इसको बहुत हार्ड दिखाना है आपको बिकॉज दे हैव लिग्निफाइड सेकेंडरी वॉल थिकनिंग. सो आउटर बना के आउटर पोर्शन आपको समझ में आ रहा है. दीज आर पेंटागोनल सेल्स एंड इनर वॉल्स जो हैं दे आर वेरी वेरी सेकेंडरी लिग्निफाइड वॉल. दीज आर लिग्निफाइड वॉल विच आर वेरी वेरी thick. And then there is a longitudinal section, as you can see here, that these are the two walls of cells, and these walls, they are not attached. There is a gap, and this gap is called pit. This gap is known as pit. Now there is another term I have labeled here, that is lumen. This space is known as lumen. Suppose you are drawing it like this, then this,
and then there, and here is another cell. So ये जो खाली स्पेस है, स्पेस को हम हमेशा बोलते हैं बायोलॉजी में ल्यूमेन, खाली स्पेस को बोलते हैं ल्यूमेन. अब कई बार बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, मैम व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ल्यूमेन एंड वैक्यूल. सी वैक्यूल इज हेल्पिंग इन द स्टोरेज ऑफ थिंग्स. हियर इज जस्ट अ पैसेज विच इज एम्प्टी. हियर इज अ स्पेस between two walls which is only and only empty, and this is called lumen, right? So this is about the all the three tissues. सिंपल परमानेंट टिश्यू. ये थोड़ी सी वीडियो और हमारा लेक्चर जो है लंबा हो गया है, बट वी आर एबल टू फिनिश अवर टू टाइप्स ऑफ टिश्यू, दैट इज simple permanent as well as meristematic tissue right now. So I will meet you in my next lecture with another two plant tissues. Till then, take care, go through this video very carefully, draw all these diagrams. If you have any doubt, then you can ask me. So till then, take care, have a very good day.